سب سے پہلے بات کریں کہ حکومت کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان۔ پیٹرول 7.6 روپے سستا ہو گیا ہے، نئی قیمت 74.52 پیسے ہو چکی ہے۔ نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو چکا ہے۔ مٹی کا تیل 11.88 پیسے سستا ہوا ہے، نئی قیمت 35.56 روپے فی لیٹر ہو گئی ہے۔ جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل 5 پیسے مہنگا، نئی قیمت 80.15 روپے فی لیٹر ہوگی، جبکہ لائٹ ڈیزل 9.37 روپے سستا، نئی قیمت 38.14 روپے فی لیٹر ہوگی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا اطلاق آج رات 12 بجے سے ہوگا۔ باقاعدہ طور پر نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کر دیا ہے۔ پیٹرول 7.6 روپے سستا، نئی قیمت 74.52 روپے فی لیٹر ہو چکی، جبکہ نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے۔ اور مٹی کے تیل کی اگر بات کی جائے تو مٹی کا تیل 11.88 پیسے سستا ہونے کے بعد نئی قیمت 35.56 پیسے ہوگی۔ آپ کے ساتھ اس کے ساتھ یہ بھی بتاتے چلیں کہ ہائی سپیڈ ڈیزل 5 پیسے مہنگا ہوگا، نئی قیمت 80.15 روپے فی لیٹر ہوگی، اور لائٹ ڈیزل 9.37 روپے سستا ہونے کے بعد نئی قیمت 38.14 پیسے ہو چکی ہے۔ اور بات کورونا وائرس کی تو پنجاب بھر میں لاہور کورونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہو رہا ہے۔ شہر میں گزشتہ 78 روز کے دوران کورونا کے 12,184 مریض رپورٹ ہوئے ہیں۔ اب تک موذی وبا سے 188 اموات ہو چکی ہیں۔ پنجاب میں کورونا وائرس کے 952 نئے کیسز سامنے آنے کے بعد مصدقہ مریضوں کی مجموعی تعداد 25,000 سے زائد ہو چکی ہے۔ ترجمان پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر کے مطابق پنجاب میں کورونا وائرس کے 952 نئے کیسز رپورٹ ہونے سے مصدقہ مریضوں کی مجموعی تعداد 25,056 ہو گئی ہے۔ شہروں میں لاہور سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے، جہاں 534 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ کورونا وائرس سے 36 مزید اموات ہونے سے موذی وبا سے جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 475 ہو چکی ہے۔ اب تک 2,33,685 افراد کے کورونا ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ پنجاب میں کورونا وائرس کو شکست دے کر صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 6,901 ہے، جبکہ محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر نے عوام سے گزارش کی ہے کہ حفاظتی تدابیر اختیار کر کے خود کو محفوظ بنائیں۔ کورونا وائرس کی علامات ظاہر ہونے پر فوراً 1033 پر رابطہ کریں۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں، چیئرمین ہلال احمر ابرار الحق بھی کورونا وائرس کا شکار ہو گئے ہیں۔ ابرار الحق کی کورونا رپورٹ پازیٹیو آ گئی ہے۔ تحریک انصاف کے رہنما چیئرمین ہلال احمر ابرار الحق بھی کورونا وائرس سے متاثر ہو گئے ہیں۔ ابرار الحق نے کورونا ٹیسٹ رپورٹ پازیٹیو آنے کی تصدیق کر دی ہے۔ ابرار الحق کا کہنا ہے کہ انہوں نے خود کو اپنے گھر میں قرنطینہ کر لیا ہے، تاہم آن لائن سہارا اور ہلال احمر کے لیے ذمہ داریاں ادا کرتے رہیں گے۔ لاہور کی عدالت کے ایک اور جج کورونا وائرس کا شکار ہو چکے ہیں۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج لاہور کا کورونا ٹیسٹ مثبت آ چکا ہے۔ ایڈیشنل سیشن جج نے کورونا ٹیسٹ رپورٹ مثبت آنے پر سیشن جج کو آگاہ کر دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کیسر نذیر بٹ نے ایڈیشنل سیشن جج کو قرنطینہ میں رہنے کی ہدایت کی ہے۔ اس سے قبل بھی لاہور کے ایک میجسٹریٹ کا کورونا ٹیسٹ پازیٹیو آیا تھا۔ ادھر 1 جون سے لاہور سمیت صوبہ بھر میں تمام نوعیت کے مقدمات کی سماعت شروع ہو رہی ہے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کیسر نذیر بٹ کی جانب سے عدالتوں میں داخل ہونے والے وکلاء سمیت تمام افراد کے لیے ماسک پہننے، ہینڈ سینیٹائزرز کا استعمال کرنے، سماجی فاصلے سمیت دیگر احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کی ہدایات بھی کی گئی ہیں۔ پنجاب حکومت کا انسداد کورونا کے ایس او پیز پر عمل درآمد کے لیے سخت اقدامات کا فیصلہ۔ ایس او پیز پر عمل درآمد نہ کرنے والوں کو جرمانے کرنے کی تجویز دے دی گئی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ حکومت کو تجویز دی گئی ہے کہ ایس او پیز پر عمل درآمد نہ کرنے والے شہریوں کو جرمانے کیے جائیں۔ تجویز میں کہا گیا ہے کہ ماسک نہ پہننے والوں کو جرمانہ کیا جائے، گاڑی موٹر سائیکل سواروں کو ایس او پیز کی خلاف ورزی پر جرمانے کیے جائیں، جبکہ جرمانے کی حد 500 روپے مقرر کی جانے کی تجویز دی گئی ہے۔ جبکہ لاہور سمیت پنجاب بھر میں 1 جون سے لائسنسنگ سینٹرز کھولنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ آئی جی پنجاب شعیب دستگیر نے باقاعدہ طور پر ایس او پیز بھی جاری کر دیے ہیں۔ ایس او پیز کے مطابق شہری 1915 پر کال کر کے ٹوکن نمبر حاصل کر سکیں گے اور ملنے والے مقررہ وقت پر ہی لائسنسنگ سینٹرز پہنچیں گے۔ لاہور شہر میں 18 مقامات پر لائسنسنگ سینٹرز بنائے گئے ہیں۔ لائسنسنگ سینٹرز کا عملہ ماسک اور گلوز پہننے کا پابند ہوگا۔ شہریوں کو بھی ماسک اور گلوز پہن کر طبی معائنے کے بعد داخلے کی اجازت دی جائے گی۔ وفاق المدارس العربیہ پاکستان نے کورونا وائرس کی وجہ سے بند ہونے والے مدارس کو حفاظتی تدابیر کی روشنی میں کھولنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔
جامعہ اشرفیہ میں وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے سینئر رہنما مولانا قاضی عبدالرشید نے محکمہ میں اعلیٰ جامعہ اشرفیہ حافظ فضل الرحیم اشرفی کے ہمراہ پریس کانفرنس کی۔ ان کا کہنا تھا کہ مشاورتی اجلاس میں 2 جون سے مدارس میں داخلے اور 12 جون سے کلاسوں کے آغاز کی تجویز دی گئی ہے، تاہم حتمی فیصلہ وفاق المدارس العربیہ اور اتحاد تنظیمات مدارس کی قیادت کرے گی۔ مولانا قاضی عبدالرشید نے کہا کہ اجلاس میں پرائیویٹ اسکول سے مل کر حکومت پر دباؤ بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور تبلیغی جماعت کی سرگرمیاں شروع کرانے میں معاونت کی یقین دہانی کرائی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ شاپنگ مالز، ٹرانسپورٹ، بازار، سبزی منڈیاں اور نادرا کے دفاتر کھل سکتے ہیں تو مدارس کیوں نہیں کھولے جا سکتے؟ صدر مملکت کے ساتھ تیار کردہ 20 نکاتی SOPs پر کسی شعبے نے عمل نہیں کیا، صرف مساجد میں عمل کیا گیا۔ مذہبی طبقے کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے، مدارس کو مزید بند رکھنے کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ پاکستان علماء کونسل نے کرونا وائرس کی وجہ سے بند ہونے والے مدارس کو کھولنے کے لیے حکومتی سطح پر مذاکراتی عمل شروع کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے پاکستان علماء کونسل کے چیئرمین حافظ طاہر اشرفی نے کہا کہ مدارس کو کھولنے کے لیے حکومت مذاکراتی عمل شروع کرے۔ مدارس نہ کھلنے کی وجہ سے طلباء کا سال ضائع ہونے کا خدشہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ کورونا وائرس کی وجہ سے احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ ملک میں ماسک کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے، غریب آدمی کیسے خریدے گا؟ موجودہ مہنگائی پر بات کرتے ہوئے حافظ طاہر اشرفی نے کہا کہ آٹے کی قیمت میں 120 روپے اضافہ کر دیا گیا۔ انہوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک کی بے حرمتی کی مذمت بھی کی۔ وزیراعظم کے معاون خصوصی برائے امور نوجوانان عثمان ڈار اور چیف سیکرٹری پنجاب جواد رفیق ملک کی زیر صدارت کیمپ آفس میں اجلاس منعقد ہوا۔ ٹائیگر فورس کی کارکردگی اور افادیت کا جائزہ لیا گیا۔ جی ہاں، انتظامی امور میں معاونت لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اجلاس میں کمشنر لاہور ڈویژن اور متعلقہ افسران نے شرکت کی۔ معاون خصوصی عثمان ڈار کا کہنا تھا کہ پنجاب میں 6.5 لاکھ سے زائد ٹائیگر فورس کے رضاکار احساس امداد پروگرام، قرنطینہ سینٹرز، فیلڈ ہسپتال اور مساجد کے علاوہ دیگر مقامات پر بھی کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ ان کی کارکردگی کے حوصلہ افزا نتائج برآمد ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ٹائیگر فورس کے قیام سے عوام اور انتظامیہ کے مابین رابطہ مضبوط کرنے میں مدد ملی ہے، اس لیے رضاکاروں کی خدمات کا دائرہ کار بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ چیف سیکرٹری جواد رفیق ملک نے کہا ہے کہ ٹائیگر فورس کارآمد ہیومن ریسورس ہے۔ انہوں نے ہدایات کی ہیں کہ رضاکاروں کی خدمات سے بھرپور فائدہ اٹھایا جائے۔ موسم کے حوالے سے بات کریں تو لاہور میں دن بھر بادلوں اور سورج کی آنکھ مچولی کا سلسلہ جاری رہا ہے۔ تاہم شام کے اوقات میں ٹھنڈی ہوائیں، ہلکی رمجھم کے بعد موسلادھار بارش نے جل تھل ایک کر دیا۔ جمعرات کے روز پنجاب میں داخل ہونے والا سسٹم بارش برسا گیا۔ ہفتے کے آخری ایام میں مطلع جزوی طور پر ابرآلود رہا، جبکہ پنجاب کے کچھ علاقوں میں ابر کرم خوب برسا۔ دیگر شہروں میں بارشیں برسنے سے لاہور کا موسم قدرے بہتر رہا۔ اتوار کو لاہور میں بادل خوب برسے، موسم خوشگوار ہو گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق جون نسبتاً گرم رہے گا، درجہ حرارت 47 تک جانے کا امکان ہے۔ مونسون کا سلسلہ شروع ہوگا۔ پنجاب میں ریکارڈ طوفانی بارشوں کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ آج کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 33 ڈگری ریکارڈ کیا گیا، جبکہ ہوا میں نمی کا تناسب 60% رہا۔ دن کے اوقات میں تیز ہوائیں بھی چلیں۔ شہر بھر میں لاک ڈاؤن برقرار ہے، مارکیٹس میں سڑکوں پر سناٹا ہے۔ شہری ڈبل سواری کی خلاف ورزی کرتے رہے، جبکہ ٹریفک وارڈنز کارروائی کرنے کی بجائے چھاؤں میں کھڑے رہنے کو ترجیح دے رہے ہیں۔ چھٹی کے روز بھی موٹر سائیکل سواروں کی جانب سے ڈبل سواری کی خلاف ورزی کی جاتی رہی، مگر ان کے خلاف کارروائی کرنے والے ٹریفک وارڈنز چھاؤں میں کھڑے رہے، جبکہ دوران ڈیوٹی ٹریفک وارڈن موبائل فون بھی استعمال کرتے رہے۔ صوبائی وزیر تعلیم مراد راز کا کہنا ہے کہ پیر سے سرکاری اور نجی سکولز کھولنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ ہم بچوں اور اساتذہ کی زندگی کو کسی صورت خطرے میں نہیں ڈال سکتے۔ صوبائی وزیر تعلیم نے نجی اسکولوں کی جانب سے 1 جون کو اسکول کھولنے کی دھمکی کے اعلان کے بعد اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، پیر سے سرکاری اور نجی اسکول کھولنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ اسکول تب تک بند رہیں گے جب تک پنجاب حکومت کھولنے کی اجازت نہیں دے گی۔ مراد راز نے مزید کہا کہ پنجاب حکومت کے نوٹیفیکیشن کے بعد ہی اسکول کھولنے کی اجازت ہوگی۔ ہم اسکول کھولنے کی اجازت دے کر بچوں اور اساتذہ کی زندگی کو خطرے میں نہیں ڈال سکتے۔ 1 جون سے نجی اسکولز کھولنے کے اعلان کے بعد ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی نے کارروائی کے لیے کمیٹیز تشکیل دے دی ہیں۔ تمام ڈیپٹی ڈی ای اوز اور اے ای اوز اپنے اپنے مراکز کے نجی اسکولز کا وزٹ کریں گے۔ اسکولز میں اساتذہ اور طلباء کے حاضر ہونے پر کارروائی کی جائے گی۔ 1 جون سے نجی اسکولز کھولنے کے اعلان پر ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی لاہور ان ایکشن ہو گئی۔ ڈپٹی ڈی ای اوز اور اے ای اوز کی سربراہی میں کمیٹیاں تشکیل دے دیں۔
तमाम डिप्टी DEOs और AEOs अपने मरकज़ का लाजमी विजिट करेंगे। CEO एजुकेशन परवेज अख्तर खान का कहना है कि किसी स्कूल में असातिज़ा और तलबा को आने की इजाज़त नहीं होगी। अहकामात की खिलाफ वर्जी पर निजी स्कूल्स को नोटिस जारी किए जाएंगे। नोटिस के बावजूद स्कूल बंद न करने पर मुतल्लिका स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उधर फीसों में 20% कमी के हवाले से भी एजुकेशन अथॉरिटी ने डिस्काउंट देने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एजुकेशन अथॉरिटी का कहना है कि कोरोना वायरस वबा के पेश नज़र छुट्टियों तक वालिदैन को फीसों में 20% तक डिस्काउंट देना लाजमी होगा। और आटे की कीमत में इजाफा हो चुका है। नान भाई भी मैदान में आ चुके हैं। मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन का सादा रोटी और नान की कीमत में इजाफे का फैसला। मौजूदा कीमत पर रोटी और नान फरोख्त नहीं कर सकते। आफ्ताब गुल की जानिब से कहा गया है हुकूमत तनूर मालिकान को पुरानी कीमत पर आटे और फाइन की फराहमी करें, जबकि पुरानी कीमत पर फराहमी न होने पर 5 जून को इजाफे का ऐलान कर देंगे। इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि नई कीमत के बाद सादा रोटी 10 रुपए और नान 15 रुपए का हो जाएगा। पंजाब हुकूमत ब्रायलर की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए सरगर्म है। पोल्ट्री एसोसिएशन, ट्रेडर्स, मार्केट के नुमाइंदों और सरकारी अफसरान पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दे दी गई। वज़ीर सनअत और तजारत मियां असलम इकबाल की पोल्ट्री एसोसिएशन के वफ्द से मुलाकात हुई। कहते हैं कि महंगाई माफिया को किसी सूरत अवाम का इस्तेहसाल नहीं करने देंगे। पंजाब हुकूमत ने चिकन की कीमतों में होशरबा इजाफे को कंट्रोल करने के लिए कोशिशें शुरू कर दी हैं। हुकूमत स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत से इकदामात उठाएगी। सूबाई वज़ीर सनअत असलम इकबाल से पोल्ट्री एसोसिएशन के वफ्द की मुलाकात में पोल्ट्री इंडस्ट्री को दरपेश मसाइल और ब्रायलर की कीमतों से मुतल्लिका अमूर पर बातचीत की गई। मियां असलम इकबाल ने मुर्गी के गोश्त की तय करदा नरखों से ज़ायद पर फरोख्त पर सख्ती से इजहार नाराज़गी करते हुए कहा है कि पोल्ट्री एसोसिएशन ने अपनी कमिटमेंट को पूरा नहीं किया, जिस पर बेहद अफसोस है। आम आदमी का मुफाद मुकद्दम और तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर हद तक जाएंगे। पोल्ट्री एसोसिएशन के चेयरमैन राव मनसब का कहना था कि पोल्ट्री इंडस्ट्री बहरान से दो चार है। प्राइसेस का ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाए जिससे सार्फिन समेत सबको फ़ायदा हो। पोल्ट्री एसोसिएशन पंजाब के नुमाइंदे हुकूमत के साथ मुज़ाकरात पर मुत्तफिक। पीर के रोज से हड़ताल की कॉल वापस ले ली। हंगामी इजलास में मुत्तफिका लाए अमल का ऐलान किया गया। लाहौर पोल्ट्री ट्रेडर्स एसोसिएशन ने टोलेंटर मार्केट में इजलास मुनक्किद किया। इजलास में रावलपिंडी, झेलम, फैसलाबाद और मुल्तान समेत दीगर अजला से नुमाइंदों ने शिरकत की। पोल्ट्री ट्रेडर्स के नुमाइंदों ने हुकूमती नरखों पर मुर्गी फरोख्त करना नामुमकिन करार दे दिया। उन्होंने कहा कि हुकूमत जिंदा मुर्गी 170 रुपए फी किलो दुकानदारों को दिलवाए, फिर हुकूमती रेट पर फरोख्त करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि दुकानदारों के साथ जुल्म किया जा रहा है। 200 रुपए जिंदा मुर्गी खरीद कर कैसे 260 रुपए पर फरोख्त करें। सदर ताहिर जावेद ने बताया कि हुकूमत की कमेटी में इन्हें मेंबर नामजद किया गया है। इंतजामिया ने यकीन दिलाया है कि 300 रुपए फी किलो में ब्रायलर फरोख्त करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। 300 से आज के दिन में जो 300 से ज्यादा रेट पे दुकानदार बेच रहा है वो भी ज्यादा है। 300 रुपए में दुकानदार को उसका जायज हक मिल रहा है। तो अगर 300 से ज्यादा कोई बेचा तो उसको गवर्नमेंट पकड़ दिया या जुर्माना करती है तो बिल्कुल हम इसके हक में। मेंबरान ने मुतफिका तौर पर फैसला किया कि हुकूमत के साथ हद दर्जा तक मुज़ाकरात किए जाएंगे। अगर हुकूमत फिर भी मसला हल नहीं करती तो एहतजाज का रास्ता अपनाया जाएगा। कैमरामैन अली नुमान के हमरा, सऊद बट, लाहौर। मक्का कॉलोनी बाजार में सब्जियों के नर्ख कम न हो सके। सरकारी नरखनामे पर अमल दरामद के बजाय मनपसंद नरखों पर सब्जियों की फरोख्त जारी है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। मक्का कॉलोनी बाजार में सरकारी नरखनामे की खुलेआम खिलाफ वर्जी जारी है। 20 रुपए किलो वाला टमाटर का रेट 40 रुपए फी किलो वसूल किया जा रहा है, जबकि 150 वाला लीमू 280 रुपए फी किलो में फरोख्त होता रहा। 100 रुपए वाले मटर 120 रुपए, 37 रुपए वाली गाजर 50 रुपए, 60 वाली शिमला मिर्च 100 रुपए, 18 वाली पालक 40 रुपए, 40 रुपए वाले करेले 60 रुपए फी किलो, 320 वाला अदरक 360 रुपए, जबकि 150 वाला लहसुन का रेट 280 रुपए फी किलो लगाया जा रहा है। खरीदारों ने सरकारी नरखनामे पर अमल दरामद न होने का शिकवा किया। शहरियों ने कहा कि लॉकडाउन के बाईस कुव्वते खरीद मुसलसल मुतासिर हो रही है। सब्जियों के नर्ख कम कराने के लिए जिले इंतजामिया अपना किरदार अदा करे। उनका कहना था कि पेट्रोल सस्ता होने के बावजूद अशे खुर्दनोश पर उसका असर नहीं हुआ। बजट बहुत अपसेट होता है। आके बाहर घर वाले तो भेज देते हैं, यहाँ पे आके बहुत सोच समझ के चीज़ें लेके जानी पड़ती हैं। फिर खास तौर पे ये लोग ख्याल भी नहीं रखते, सब्जी बहुत गंदी डाल देते हैं, फिर वापस 2 बार चक्कर लगाना पड़ता है। और आपको पता ही है फिर घर से भी 100 बातें सुनने को मिलती हैं। बाकी सब्जियों के रेटों में कोई पहले से थोड़ा बहुत कमी आई है, पर इतनी खास कमी नहीं आई। गवर्नमेंट कोई स्टेप नहीं ले रही कि वो कोई आवाम को रिलीफ मिले जाए तेल का। हम तो कहते हैं तेल उसी जगह पहुंच जाए चीज़ें सस्ती हो जाए। वो लूट मार पहले की तरह हो रही है जो पहले हो रही थी जिस तरह।
तो तेल का जो सस्ता होने का वो आवाम को तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ ना जी। शहरियों ने मजीद कहा कि हुकूमत सिर्फ दामों की बजाय अमली इकदाम करे। कैमरामैन अली नुमान के हमरा सऊद भट्ट, लाहौर। और शहर में लॉकडाउन के बावजूद नहर पर शहरियों का रश बरकरार रहा। कहते हैं कि घरों में बिजली की लोड शेडिंग से सताए नहर का रुख कर रहे हैं। पुलिस नहर में नहाने पर पाबंदी पर अमल दरामद करवाने में नाकाम रही। कोरोना वायरस से बचाव के पेश नज़र नहर में नहाने पर पाबंदी आयद की गई है, मगर पाबंदी के बावजूद शहरियों का नहर पर रश रहा। शहरी कहते हैं घर में बिजली नहीं आती, गर्मी भगाने के लिए नहर में नहाने आते हैं। लाहौर पुलिस नहर में नहाने पर पाबंदी पर अमल दरामद कराने में नाकाम नजर आई। अहलकारों की जानिब से ना तो शहरियों को रोकने के लिए पेट्रोलिंग की जा रही है और ना ही नहर में नहाने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई। ग्लोबल पीस कनाडा से ताल्लुक रखने वाले डॉक्टर खुर्शीद ए बाबर ने कहा है कि चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल बदउनवानी के खात्मे के लिए अपने इकदामात के बायस आने वाली नस्लों के लिए मिसाल और एक तारीखी शख्सियत बन गए हैं। नैब की जानिब से जारी एलामिया के मुताबिक डॉक्टर खुर्शीद ए बाबर ने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से चेयरमैन नैब की इंसदादे बदउनवानी की कोशिशों को सराहा है। नैब की जानिब से जारी एलामिया के मुताबिक डॉक्टर खुर्शीद अहमद बाबर ने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से चेयरमैन नैब की इंसदादे बदउनवानी की कोशिशों को सराहा है। उन्होंने कहा कि इससे चेयरमैन नैब की नेकनामी में इजाफा होगा। एलामिया के मुताबिक पिलडाट, मिसाल पाकिस्तान, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल और आलमी इक़्तिसादी फोरम जैसे मोतबर इदारों ने भी चेयरमैन नैब की कारकर्दगी को सराहा है। गैलप एंड गेलानी के हालिया सर्वे में 59% लोगों ने नैब की कारकर्दगी पर एतमाद का इजहार किया है। मौजूदा चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के दौर में नैब ने गुज़िश्ता 28 माह के दौरान बदउनवान अनासर से बिलवास्ता और बिलावास्ता तौर पर 178 अरब रुपए वसूल करके कौमी खजाने में जमा कराए। एलामिया के मुताबिक नैब पाकिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा के बदउनवानी के खिलाफ कन्वेंशन के तहत फोकल पर्सन है। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसने सीपैक मंसूबों की निगरानी के लिए चीन के साथ नैब के जरिए मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत किए हैं। नैब की कोशिशों के बायस पाकिस्तान सार्क के एंटी करप्शन फोरम का पहला सरबराह है। नैब ने फिंगरप्रिंट्स, सवाली दस्तावेजात और डिजिटल फॉरेंसिक के लिए अपनी फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री कायम की है। नैब ने अपने इन्वेस्टिगेशन अफरान और प्रोसिक्यूटर्स को जदीद तर्ज पर तरबियत फराहम करने के लिए पाकिस्तान एंटी करप्शन अकेडमी कायम की है। नैब के प्रोसिक्यूशन डिवीजन की भरपूर पैरवी के बायस नैब के मुकदमात में मजमूई सजाओं की शरह 70% है। कोरोना वायरस लॉकडाउन में नरमी के बाद लाहौर हाई कोर्ट में 2 माह से जायद अरसे के बाद कल से रौनकें बहाल हो जाएंगी। चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान समेत लाहौर हाई कोर्ट के तमाम 40 जजेस तमाम नौयत के केसेस की समाअत करेंगे। प्रिंसिपल सीट पर चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान समेत 26 जजेस की अदालतों में तमाम नौयत के मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर कर दिए गए हैं। चीफ जस्टिस समेत तमाम जजेस की अदालतों में 832 अर्जेंट केसेस समाअत के लिए मुकर्रर किए गए हैं। हाई कोर्ट मुल्तान बेंच में 6, बहावलपुर बेंच में 4 और रावलपिंडी बेंच में 4 जजेस केसेस सुनेंगे। अदालतों में केसेस की समाअत होने से वकला के चैम्बर्स की रौनकें भी बहाल हो जाएंगी। हाई कोर्ट में रेगुलर और पुराने केसेस समेत तमाम नौयत के केसेस की समाअत होगी। प्रिंसिपल सीट पर 9 डिवीजन 26 सिंगल बेंचेस समाअत करेंगे। तमाम डिवीजन बेंचेस पीर से जुमेरात तक मुकदमात की समाअत करेंगे। टेक्सटाइल मिल्स समेत दिगर इंडस्ट्री के बिजली के बिलों में रियायत न देने का मामला है। इजाफी सर चार्जेस की वसूली के खिलाफ मजीद मिल मालिकान ने हाईकोर्ट से रुजू कर लिया है। चीफ जस्टिस हाईकोर्ट मोहम्मद कासिम खान कल 1 जून को दरखास्तों पर समाअत करेंगे। चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान इत्तेहाद टेक्सटाइल दरखास्तों पर 1 जून को समाअत करेंगे। विफाकी हुकूमत की जानिब से डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल असद अली बाजवा पेश होंगे। दरखास्तों में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि विफाकी हुकूमत ने सनती इदारों को बिजली के बिलों में रियायत देने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। जनवरी 2019 को जारी किए SRO में जीरो रेटेड इंडस्ट्री से 7.5% वसूल किया जाना था। जीरो रेटेड इंडस्ट्री में फ्यूल चार्जेस, फ्यूल एडजस्टमेंट, नीलम जहलम चार्जेस विफाकी हुकूमत ने बर्दाश्त करना थे। वजारत एनर्जी के जारी नोटिफिकेशन में टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इजाफी सरचार्ज वसूल न करने की सहूलत 30 जून 2020 तक मौजूद है। विफाकी हुकूमत ने बिजली के बिलों की रियायत बारे दोबारा नोटिफिकेशन जारी किया। बिजली के बिलों में हुकूमती नोटिफिकेशन के मुताबिक रियायत के लिए FBR को दरखास्तें दी, मगर सुनवाई नहीं हो रही। आपको बताएं कि शिराज टाउन में अमीर चौक ग्रीन टाउन के रिहायशियों का LWMC के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। कहते हैं इलाके में गंदगी की वजह से जीना मुहाल हो गया है। एहतजाज के दौरान LWMC के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। मुजाहिरीन का कहना था कि LWMC का अमला कई हफ्ते कूड़ा उठाने नहीं आता। गंदगी के ढेरों की वजह से इलाके में मच्छर और मक्खियों की बहुतात है। बदबू और ताफुन से जीना मुहाल हो गया है। रिहायशियों ने कहा है कि गंदगी की वजह से बच्चे बीमार हो रहे हैं, मगर
LWMC ऐसी है कि बात सुनने को तैयार नहीं। शहर के पौश इलाके जौहर टाउन में कब्जा माफिया ने पंजे मजबूत कर लिए हैं। अल्लाह चौक से जिना हॉस्पिटल जाने वाली रोड पर तजावुजात की भरमार है। मुतअद्दिद मोटर वर्कशॉप, सर्विस स्टेशन और फर्नीचर नीलाम घर बना लिए गए हैं, जबकि इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। जौहर टाउन, अल्लाह चौक, ताज जौहर शादी हॉल, मेन बॉलीवुड पर कब्जा माफिया का राज दिखाई देता है। कब्जा माफिया ने सरकारी इरादे पर मुतअद्दिद नीलाम घर, फर्नीचर शोरूम्स, सर्विस स्टेशन और मोटर वर्कशॉप्स बना रखी हैं, जिनके खिलाफ मुतअद्दिद बार ऑपरेशन भी किया गया है, मगर तजावुजात जूं की तूं बरकरार हैं। मेन बॉलीवुड रोड पर तजावुजात के बाइस ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर होती है। जगह जगह रेहड़ीबान ट्रैफिक मसाइल की वजह बनने लगे हैं। तजावुजात माफिया और रेहड़ीबानों की जानिब से टू लेन मार रोड को सिंगल लेन रोड में तब्दील कर दिया गया है। आपको बताएं कि शहर में गाड़ियों की बैटरियां चुराने वाला गिरोह सरगर्म है। सब्ज बाजार के बाद फैक्ट्री एरिया में गाड़ियों से बैटरी चुराने की CCTV मंजर आम पर आ गई। फैक्ट्री एरिया के इलाके शमा कॉलोनी से शहरी मलिक नईम की गाड़ी से भी बैटरी चोरी हो गई। सिटी 42 को मौसूल होने वाली वारदात की CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि मोटरसाइकिल सवार चोर ने पहले अतराफ का जायजा लिया, फिर गली में कोई न होने पर मौका मिलते ही चोर गाड़ी से बैटरी चुरा कर फरार हो गया। मलिक नईम का कहना है कि शमा कॉलोनी से एक हफ्ते के दौरान गाड़ियों की 6 बैटरी चोरी हुई हैं। इससे कबल सब्जाजार से भी शहरियों की गाड़ियों की बैटरी चोरी हो चुकी हैं, जबकि CCTV के बावजूद मुल्जिमान पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। मजहबी रवादारी का फ़रोग़। 15 रुकनी मसीही बिरादरी के वफ्द की मदरसा तालीमुल कुरान समनाबाद आमद कुल मसालिक उलमा बोर्ड के कायदीन से मुलाकात और ईद मुबारक दी। मसीही रहनुमा सलीम शाकिर की क़ियादत में वफ्द ने चेयरमैन कुल मसालिक उलमा बोर्ड मौलाना मोहम्मद आसिम मखदूम, अल्लामा हाफिज कासिम रजा नकवी से मुलाकात की। इस मौके पर पास्टर डैनियल खोखर, विक्टर लाल, कासिम अली कासमी, इनामुल हक सलीम और हाफिज मसर जलानी और दीगर भी मौजूद थे। आसिम मखदूम का कहना था कि पाकिस्तान में तमाम मज़ाहिब के मानने वाले बसते हैं। पाकिस्तान मज़ाहिब के पैरोकारों का एक खूबसूरत गुलदस्ता है। मसीही रहनुमा सलीम शाकिर ने कहा कि मजहबी रवादारी के फ़रोग़ के लिए आज इस्लामी मदरसे में आए हैं। पाकिस्तान में अक़लियतें महफूज हैं। हाफिज कासिम रजा नकवी ने वफ्द से बातचीत करते हुए कहा कि अक़लियतों के हुकूक़ के लिए हुकूमत की खिदमात काबिल तहसीन हैं। आपको बताएं कि आस्ताना आलिया इरफानिया चिश्तिया सुंदर शरीफ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उलमा मशाइख विंग के ज़ेर एहतमाम तैयारा हादसा में शहीद होने वाले अफराद के इसाले सवाब के लिए कुरान ख्वानी और दुआ का इनेकाद किया गया। मरकजी सदूर सजादा नशीन पीर सैयद हबीब इरफानी ने मुल्क व कौम की सलामती के लिए दुआ करवाई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उलमा मशाइख विंग के ज़ेर एहतमाम सानेहा कराची और अफवाज पाकिस्तान के शहदा के लिए कुरान ख्वानी इज्तिमाई दुआ का एहतमाम किया गया। इज्तिमाई दुआ पीर सैयद हबीब इरफानी ने करवाई। तकरीब में पीर सैयद हबीब इरफानी, उलमा असगर आरिफ चिश्ती, गुलाम फरीद चिश्ती, सैयद अवैसुर रहमान गिलानी समेत कसीर तादाद में रहनुमाओं ने शिरकत की। कौमी क्रिकेट टीम के दौरा इंग्लैंड के लिए मुमकिन खिलाड़ियों का इंतखाब। कौमी सिलेक्शन कमेटी का इजलास कल होगा। चीफ सेलेक्टर और हेड कोच मिसबाहुल हक PCB हुकाम से कैंप में खिलाड़ियों की हतमी तादाद के हवाले से भी तबादला ख्याल करेंगे। चीफ सेलेक्टर और हेड कोच मिसबाहुल हक ने सिलेक्शन कमेटी के अराकीन से राबता करके खिलाड़ियों की फहरिस्त मुरतब करने का कहा है। ज़राए के मुताबिक तमाम सेलेक्टर्स को अपनी फहरिस्त तैयार करने का कहा गया है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट समेत एमर्जिंग कैटेगरी में शामिल 21 खिलाड़ियों के साथ साथ टेस्ट और T20 स्क्वाड में शामिल खिलाड़ियों के हवाले से भी राय मांगी गई है। ज़राए के मुताबिक फवाद आलम, इमरान खान सीनियर, मोहम्मद मूसा, खुशदिल शाह, इमाद भट्ट, मोहम्मद हफीज, शुएब मलिक, मोहम्मद आमिर और वहाब रहाज के नामों पर गौर किया जा रहा है। मारूफ अदाकार शहरोज सब्जवारी ने बिलाकर मॉडल सद्दफ कंवल से निकाह कर ही लिया है। शहरोज सब्जवारी की पहली बीवी सारा यूसुफ ने सद्दफ कंवल से ताल्लुकात की बिना पर शोहर से अलहदगी इख्तियार की थी। टीवी इंडस्ट्री के नामवर मॉडल अदाकार और सीनियर अदाकार बहरोज सब्जवारी के बेटे शहरोज सब्जवारी मॉडल अदाकारा सदफ कंवल के साथ रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक हो गए हैं। निकाह की तकरीब सादगी से हुई। दोनों के करीबी अजीज़ व अकारिब ने शिरकत की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। उधर शहर में ग्रास रूट क्रिकेट की बहाली के लिए क्रिकेट ऑर्गेनाइजेशन ने SOPs की तैयारी का काम शुरू कर दिया।
शहर में ग्रास रूट क्रिकेट की बहाली के लिए क्रिकेट ऑर्गेनाइजर्स मुतहरिक हो गए। क्लब क्रिकेट के मुख्तलिफ टूर्नामेंट शुरू कराने के लिए ICC और PCB की हिदायत पर SOPs की तैयारी का काम शुरू कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक इब्तदाई तौर पर 13 निकात पर मुश्तमिल SOPs मुख्तलिफ क्लब ऑर्गेनाइजर्स को भिजवाए गए हैं। SOPs में तजवीज़ दी गई है कि मैचेस के दौरान खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम की बजाय खुले मैदान में बैठेंगे। खिलाड़ियों के दरमियान 3 से 4 फुट का फासला रखा जाएगा। हर ओवर के बाद खिलाड़ी हैंड सैनिटाइजर इस्तेमाल करेंगे, जबकि खिलाड़ियों के सेलिब्रेशन करने पर भी पाबंदी होगी। बॉलर अपना हैट, कैप या स्वेटर वगैरह अंपायर्स को नहीं पकड़ाएंगे। मैच से कबल और दौरान मैच खिलाड़ियों का टेम्परेचर चेक किया जाएगा। हर खिलाड़ी के लिए पानी की अलग बोतल होगी। विकेट कीपर और बल्लेबाजों पर एक दूसरे के ग्लव्स इस्तेमाल करने पर पाबंदी होगी। बॉलर्स गेंद को चमकाने के लिए थूक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। मैच और प्रैक्टिस के दौरान सोशल डिस्टेंस का खास ख्याल रखा जाएगा। दौरान मैच खिलाड़ियों के मैदान से बाहर जाने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। खिलाड़ियों के खाने का इंतजाम टीम मैनेजर या कोई और जिम्मेदार करेगा। मैच ऑफिसर्स भी मैच से कबल, वक्फे और मैच के इख्तिताम पर सोशल डिस्टेंस का खास ख्याल रखेंगे। ज़राए के मुताबिक क्रिकेट ऑर्गेनाइजर्स और मैच ऑफिशियल्स के SOPs पर इत्तफाक़ राय के बाद अरबाब अख्तियार से राब्ता किया जाएगा। SOPs पर इत्तफाक़ राय की सूरत में 15 जून के बाद PCB और हुकूमती इजाज़त से ग्रास रूट क्रिकेट की सरगर्मियाँ बहाल की जा सकती हैं। हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। मुनफरिद जायका, रंग और खुशबूदार फल आम गर्मियों का खास फल अपनी एक खास पहचान रखता है। पाकिस्तान का शुमार उन ममालिक में होता है जहाँ बड़ी सतह पर आम की पैदावार होती है। गर्मी के फलों का बादशाह सलामत आम अपने जायके और खुशबू में मुनफरिद हैसियत का हामिल है। पाकिस्तान का शुमार उन एशियन ममालिक में होता है जहां बेहतरीन इकसाम के आमों की पैदावार होती है। ये आम दुनिया भर में बरामद किए जाते हैं, मगर रवां बरस कोरोना वायरस की वजह से पाकिस्तानी आम की बरामद भी मुतासिर हुई है। आम की अनवरटोल, दुसहरी, सिंदड़ी, सोनारी, लंगड़ा, चौंसा, गोला और दीगर इकसाम बहुत मशहूर हैं। आम को हर फर्द शौक से खाता है और इसके फवाइद के हिसाब से बहुत अच्छा है। आप इसको वैसे खाएं, आप इसका अचार के तौर पर इसको इस्तेमाल करें, ये हर लिहाज से आपको पसंदीदा चीज़ है। और ये कैसी चीज़ है को मेरा नहीं ख्याल कि इसको कोई नापसंद करता हो। सारे फलों का बादशाह, इसे खाना चाहिए। वैसे भी ये ताकतवर होता है। बहुत इसके फ़ायदे ये हैं, ताकतवर चीज़ है और हर मौसम की हर फल खाना चाहिए, इससे फ़ायदा है। बेमौसमी चीज़ खाना उसका कोई फ़ायदा नहीं है, नुकसान तो हो सकते हैं, फ़ायदा नहीं। आम एक ऐसी चीज़ है इसमें अल्लाह ताला ने बड़ी ही। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना।